everyone, this is Sajal Nigam and welcome to this IAP session. Now in this session, we'll be covering everything from investments to the type of investments to the difference between the savings and investments and to each and every doubt. And also I'll be having my laptop just beside me so that in case I need to refer the slides to give you the insights. Okay, so now without any further delays, let's straight get into the session, right? Okay, so एक चीज सबसे स्टार्टिंग में बात करते हैं कि what are the languages we speak. Being Indians, I think we speak only primarily two languages. If we talk about North Indians, like most of us are speaking either Hindi or like English, right? So we speak a blend of it, like a Hinglish, right? Okay. But now, since this is an investor awareness program, we'll be talking about money. So what language does money speak? My dear friends, money speaks only one language. And that language is that if you save me today, I'll save you tomorrow. अगर आप मुझे आज बचाते हैं तो कल मैं आपको बचा लूंगा. आप चाहे किसी परिस्थिति में हो, I'll be there for you, right? So with this, we initially get to know the essence of money. Money is always important. Not just for, fulfilling our luxuries, but also to satisfying our needs, right? So this is something which we really need to take care about. And कैसे इसका देखभाल रखना है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है, we'll talk about it in today's session. Okay. So yeah, so next slide talks about that why investment and what's wrong with the savings. हम सेविंग भी तो कर सकते हैं ना, इन्वेस्ट क्यों करना है, क्या डिफरेंस क्या है? ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू माय माइंड इज कि यार मेरे ना मम्मी पापा बताते हैं कि आज से 10 साल पहले जो तुम्हारे ये 100 रुपये होते हैं जिसको तुम वैल्यू भी नहीं करते, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा होते थे. बिकॉज इन्फ्लेशन हैज़ कम अप. Inflation has come into the picture, and that is the reason that the amount which was so much in the earlier times is now reduced to a lesser value. क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, there's this very simple cycle. As inflation grows, the price of the goods also grows. So जो वैल्यू होती है ना, अब आपने उस समय अगर 100 रुपये बचाए थे अपनी 1000 रुपये की इनकम से, लेट्स से, तो उस समय आपके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट था सेविंग के लिए. बट अगर हम आज उसको देखें तो आज 100 रुपये डजंट अकाउंट टू अ बिग सेविंग, राइट? सो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से, that just by saving or like putting a money aside from your income is not specifically or is not majorly a reason which can help you in your financial crisis situations. So what actually helps you in your financial crisis situations is investment. Why? Because this major factor of inflation does play a role there, and this investment thing says that okay, now bring it on inflation. Even if you're there, I will sort this person out. Because जब आप invest करते हैं ना, there's a very good saying, and that saying is that money begets money. जब आप पैसे को किसी चैनलाइज करते हैं, जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपका पैसा ग्रो होता है. आप अगर पैसे को सिर्फ एक जगह रख देंगे तो कभी ग्रो नहीं होगा. मे बी वो सेफ रहेगा लेकिन वो ग्रो नहीं होगा. तो अब कैसे हमें ग्रो करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, we'll talk about it. Okay, so yeah, so next thing is the same question, why savings are different from investments. Okay, so while savings, I'll be just referring to what is written in the slides and then I'll explain. Okay, so while savings, you put aside your some amount from your current earnings. By investing, you put that money to growth. So basically savings is a prerequisite to investment. भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको कहीं पैसा लगाना है तो पहले पैसा निकालना पड़ेगा. तो लोग क्या करते थे, लोग पैसा निकाल के उसी को कहते थे ओके वी हैव डन, वी आर वर्क इज एक्चुअली डन हियर. बट नो, आपने जो पैसा निकाल लिया है वो एक स्टेप पहले का काम है पैसा ग्रो करने का. एक स्टेप बाद क्या करना है, आपको उस पैसे को चैनलाइज करना है, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, right? So that is the basic and that is the basic difference between savings and investments. Okay, so we have got it. Okay, now what we need from our investments. अब भाई सिंपल सी बात है कि ठीक है हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें ऐसे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सीम्स सो मच ल्यूक्रेटिव एंड सो मच इंटाइसिंग टू अस. ओके, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज इनकैशेबिलिटी और द लिक्विडिटी. क्योंकि ना हम सबको लगता है कि यार ऐसा कभी
अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसा तो नहीं हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अपन निकाल ही नहीं सकते, बट नो, सो देयर इज अ थिंग दैट यू कैन इन कैश योर सेविंग्स ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी एंड यू totally hold that accountability to take that anytime you want it, right? Okay, so very first thing is liquidity, ठीक है. The next thing is safety. ऑफ कोर्स मैंने आज भी बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ कि वेन एवर इट्स द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दे ऑलवेज पुट देयर मनी इनटू द बैंक अकाउंट. क्यों, जब अगर जाके आप उनसे पूछो कि क्यों आप बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हैं, क्यों नहीं आप किसी और जगह, आजकल इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, आजकल इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आप क्यों नहीं वहाँ सेव करते हैं, तो दे हैव ओनली वन थिंग कि भैया बैंक में हमें इतना गारंटी है कि बैंक हमारा पैसा सेफ रखता है. सो सेफ्टी जो है एक इंडियन माइंडसेट आप ले लो या मेरे ख्याल से किसी भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारा जो हार्ड एंड मनी होता है वी ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी वेरी सेफ. सो सेफ्टी इज अगेन वन थिंग. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज बेटर रिटर्न्स. इन्वेस्टमेंट्स, आई फील इन्वेस्टमेंट्स कम विद दिस थिंग ऑफ रिटर्न्स. अगर आपके पास रिटर्न नहीं है ना, अगर आपको दिख रहा है कि ओके दिस इज अ बेसिक साइकोलॉजी, इफ यू सी दैट ओके हियर आई एम फ्रॉम प्लान ए आई एम गेटिंग 9% रिटर्न, फ्रॉम प्लान बी आई एम गेटिंग 12% रिटर्न, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत सेकेंड हो जाती हैं, बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग वेयर योर अटेंशन स्पैन गोज इज दैट ओके हियर आई एम गेटिंग अ लार्जर रिटर्न, आई एम गोइंग फॉर दिस प्लान, राइट? सो बेटर रिटर्न्स इज ऑल्सो वन थिंग कि आपको किस ऑप्शन में या किस जगह पे अपने पैसे से बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज टैक्स एफिशिएंट. क्योंकि भाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेव टैक्स, नोबडी वॉन्ट्स टू गिव टैक्स, ठीक है? सो कैसे हम अपने पैसे को बढ़ाएं भी और कैसे उस बढ़े हुए पैसे पे हम टैक्स भी कम दें. तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं कि यार ठीक है हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये 4 चीज़ें हमें मिलेंगी? क्या हमारा पैसा सेफ होगा? क्या हम उसको लिक्विडिटी, क्या हम उसको इन कैश कर सकते हैं हमेशा? क्या हमारा पैसा टैक्स एफिशिएंट होगा? क्या भाई सजल हमारे पैसे में हम टैक्स की बचावट कर पाएंगे? एंड द लास्ट थिंग इज कि क्या हमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे? विल वी गेट मच बेटर रिटर्न्स विद दिस इन्वेस्टमेंट यू आर टेलिंग अबाउट? Okay, so now we get that these are all the major factors which you people are looking for. Now let's see how can we help you giving all those factors. Okay. So उससे पहले भी एक चीज़ और आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वन मेक. क्योंकि जब अगर आप जैसे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, आप जाते हैं, आप गूगल यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करें लेमैन के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. उसमें आ जाता है कि भाई ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कमोडिटीज़ हैं, इक्विटी है, डेट है ना, रियल एस्टेट है. तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो भी बहुत बड़ी बात है. कहाँ करना है उसके लिए अभी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे. हम आपको बताएंगे कि आपके क्या, आप जितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहते हैं, कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है और उस हिसाब के आपके टाइप आपको एलोकेट होते हैं, राइट? ओके, सो विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है? उससे पहले एक और क्वेश्चन आप लोग का आता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत नाम सुनते हैं भाई, केबीसी में भी अमिताभ बच्चन बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? हमें अगर आप कह रहे हो हम अपना पैसा उसमें लगा दें तो पता तो होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है. ओके, सो बेसिकली गाइस म्यूचुअल फंड्स ना एक बहुत ही साइक्लिक और एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है. there's a whole cyclic procedure. Okay, so what happens is that you, the investors, you put your very much hard earned money into you give that money to the fund manager. अब जो फंड मैनेजर इंसान है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है. दिस फंड मैनेजर होल्ड्स द एक्सपर्टीज इन दिस सेक्टर एंड दिस फंड मैनेजर इज वेरी मच लर्नड एंड एक्सपीरियंस पर्सन. तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो इस इंडस्ट्री के बारे में इन एंड आउट जानता है. तो जब आप ऐसे इंसान को अपना पैसा देते हो तो बहुत ही सोच समझ के आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है विद द मोटिव ऑफ गिविंग यू द मोस्ट रिटर्न्स ही कैन, राइट? सो ये आप फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हो. अब फंड मैनेजर जो है अपनी एक्सपर्टीज और अपनी नॉलेज लगा के आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है. तो बेसिकली यूजुअली लोग क्या करते हैं, खुद ही इन्वेस्ट करने चले जाते हैं. आप वो कर सकते हैं इफ यू हैव द सूटेबल नॉलेज, बट इफ यू डोंट देन दिस इज अ ऑप्शन कि आप किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपना पैसा दे दीजिए ताकि वो सिक्योरिटीज और फंड्स में उनको लगाए. उससे क्या होता है, आपके पास बेटर रिटर्न्स आते हैं. अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका एक इनिशियल अमाउंट एक 10x 3x अमाउंट में बन जाता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स. तो बेसिकली जब आपको वो रिटर्न्स मिलते हैं तो आपका पैसा और हो जाता है एंड देन अगेन अल्टीमेटली यू अगेन इन्वेस्ट दैट मनी, राइट?
So this is basically a whole cyclic procedure through which a mutual fund works, right? Okay. Now the next thing is why mutual funds? क्यों mutual funds हम करें? So basically I'm answering all these questions which come to a layman's mind, right? क्योंकि म्यूचुअल फंड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सबको पता है कैसे करना है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन. These questions are something which really needs to be answered, right? Okay, so anyways, coming to the point that why mutual funds, क्यों म्यूचुअल फंड ही क्यों करना है? There's so many reasons. I'm telling you, I can go on and on with the reasons, but okay, let me give you some few and the primary ones. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. यहाँ पे आपके पैसों की देखभाल एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होती है, एक बहुत ही सिस्टमैटिक और एक सेंट्रलाइज तरीके से होती है, राइट. सेकेंड इज़ लो कॉस्ट. पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही मिनिमम पैसे में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं. थर्ड इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन. आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमारे पास पैसा है, हम अपना पैसा एक जगह लगा देते हैं. अब भाई उस एक जगह में मान लीजिए मैंने इक्विटीज़ में अपना पैसा लगा दिया, वहाँ पे लॉसेस हो गए मुझे बहुत ज़्यादा, जितना लगाया था उसका 10 गुना तो मैंने खो दिया, राइट. तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दूंगी जो कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए करता है, उसमें क्या है कि वो आपका पैसा कहीं पे उसने 30% लगाया, कहीं 20% लगाया, जहाँ लो रिस्क है वहाँ 50% लगाया. इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए इस जगह पे आपका पैसा थोड़ा गिरता भी है, तो यहाँ पे वो इतना ग्रो हो जाता है कि वो लॉसेस कवर अप हो जाते हैं, राइट. सो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे है. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. अगर आप किसी ऐसी एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे जुड़े हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होती है. आपको दिखता है, आपके फ़ोन पे आ जाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, राइट. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. ऑफकोर्स जो हमने पहले भी बात करी थी कि भाई हमारे मोटिव्स क्या होते हैं, हम चाहते क्या हैं, इनकैशेबिलिटी चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इनकैशेबिलिटी मिलती है. आपका पैसा है, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट टेक इट आउट, राइट. नेक्स्ट इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस इन द सेंस कि हमारे यहाँ ये लाइन होती है कि यू नो पीपल आस्क कि व्हेन शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो वी से दैट स्टार्ट इन्वेस्टिंग सिंस द टाइम यू गेट योर फर्स्ट पे चेक, राइट. जितनी जल्दी आपको, जैसे आपका पहला पे चेक मिले उसी में SIP शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज द थिंग. स्टार्ट द यू नो एज सून एज यू इन्वेस्ट, once you become an early investor, you eventually become the investor who gets the maximum returns out of it, right. So this is again one thing कि ये एक बहुत ही convenient option है. हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि till the time you get this much amount of money only then you can invest. You can always invest with small amounts, right. Okay, and the last point and the most trusted point I feel is that it is well regulated by SEBI, Security Exchange Board of India. I don't think इससे ज़्यादा credible body कोई हो सकती है. This is purely a government body with which we all are associated with, right. So there's no issue of being uncredible or of falsing out, right. Okay, now let's also talk about mutual funds and asset classes. Asset classes क्या है, ठीक है. So first one is debt funds. डेट फंड्स जो होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है. यूजुअली दे आर फॉर लाइक यू कैन से 1 to 3 years, जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना होता है. देन we'll talk about it in the later part of the session. We'll talk about कि आपका कितना टाइम पीरियड में आपका क्या गोल होना चाहिए, तब आपको ये करना चाहिए. So we'll talk about everything. I'm just giving you a gist of everything for now, ठीक है, कि एसेट क्लासेस होती क्या है. ओके, सो डेट फंड्स के हमने बारे में बात करी. जेनरिक व्यू यही है कि एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है. सेकंड इज लिक्विड फंड्स, जिसको आप कभी भी इन कैश कर सकते हैं. थर्ड इज इक्विटी स्कीम्स. इक्विटी स्कीम्स यूजुअली लॉन्गर टेन्योर के लिए होती हैं. अगर आप 10 साल का कर रहे हैं या आप 7+ years का कर रहे हैं, इक्विटी इज जनरली सजेस्टेबल, राइट. एंड द लास्ट इज द हाइब्रिड फंड्स. हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है, द नेम सजेस्ट कि आप डेट एंड इक्विटी आप दोनों को मिला करके आप एक हाइब्रिड तरीके से जो है अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं. बेसिकली म्यूचुअल फंड आपके लिए आपके फंड्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कीम्स. You people will say that okay, you guys know how, what is this, what is that, but how as I being an investor know कि where do I differentiate.
अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप इक्विटी स्कीम्स में कर रहे हैं तो एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू यही समझ लीजिए कि इक्विटी में आप लॉन्गर टेन्योर के लिए करते हैं, हाइब्रिड स्कीम्स के लिए आप यूजुअली एक मीडियम टेन्योर के लिए करते हैं, मीडियम से लॉन्ग भी हो सकता है, एंड डेट स्कीम्स में आप यूजुअली शॉर्ट टेन्योर के लिए करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं है तो आप डेट में जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, ठीक है, हमें समझ आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एसेट क्लासेस एंड एवरीथिंग। टाइप्स टाइप्स क्या है इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो वेरी फर्स्ट इज लमसम। लमसम क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप पहले ही डाल देते हो और अपना पैसा ग्रो होने के लिए लगा देते हैं। सेकेंड इज SIP एंड ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट, क्योंकि ये है ही इतना कन्वीनियंट ऑप्शन। SIP क्या होता है कि आपका हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट, जो कि आपने खुद डिसाइड किया होता है, वो सर्टेन अमाउंट आपके बैंक से कटता है और इन्वेस्ट होने के लिए चला जाता है। अब वो अमाउंट धीरे धीरे इन्वेस्ट होता जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब अभी हम देखेंगे कुछ स्लाइड्स में कुछ डेटा देखेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे आपका जो अमाउंट है SIP के थ्रू एक छोटा छोटा अमाउंट करके वो इतना बड़ा हो गया आज। ओके, सो SIP इज वन थिंग. The third thing is SWP, which is the systematic withdrawal plan. Systematic withdrawal plan बेसिकली क्या होता है कि अगर आप थोड़ा अमाउंट आपने बेसिकली मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, मान लेते हैं आप उससे 50,000 रुपये निकालते भी हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तब भी आप देखेंगे कि आपका पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो ही हो रहा है। तो यहाँ पे यू सी दैट इवन विथ टेकिंग आउट ऑफ योर मनी, स्टिल योर मनी इज ग्रोइंग, द रिमेनिंग मनी इज स्टिल ग्रोइंग. सो SWP इज ऑल्सो वन थिंग. एंड द लास्ट थिंग इज STP. STP क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए आपने पहले सोचा कि ठीक है मेरा अभी इन्वेस्टमेंट मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ, तो इन लोगों ने बताया कि डेट में करना चाहिए, राइट. सो यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द डेट. सो आपने डेट में करा, फिर आपका हो गया कि ओके यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, नाउ यू वांट टू एक्सपैंड योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो अब आपको इक्विटी में शिफ्ट करना है. सो दिस इज STP. STP बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. यहाँ पे आप अपना डेट से इक्विटी में यू कैन ऑल्सो transfer your money, right? So this is one thing. So these are the 4 kinds of types of investment we can say. Okay, now there's a slide which talks about investing for long term. As I've always told you, abhi bhi I just mentioned that ki start investing as soon as you get your first paycheck. So time really plays a big role, you know. There are many cases we have, we have seen, and even you people will see, where we take 2 people, one is Mr. Early, the other one is Mr. Late. Now Mr. Early, in spite of investing little amounts, let's say he's investing 10,000, 10,000 की SIP मान लेते हैं, और Mr. Late जो है वो 20,000 की SIP कर रहे हैं, ये 30 साल पे कर रहे हैं, ये मान लेते हैं 45 साल पे कर रहे हैं, ठीक है. अब दोनों की रिटायरिंग एज हम 60 मान के चलते हैं. You won't believe the amount difference between Mr. Early and Mr. Late is so long, is so much huge, that once you see it, you actually get to know the power of time which plays here. Time क्या immense power play करता है वो आपको वहाँ समझ आता है. So don't worry, it's never too late. I'll still say start investing after this session. I'll say start investing right now. I'll say, because as soon as you invest, just mark my words, it will make a difference. Okay, now investing for long terms, I do have the data on my PPTs, but unfortunately I'm not able to show you. But okay, anyways, I'll just dictate that, right? Okay, so what's happening is that in the first year, the investor has invested 1,20,000 of investment, right? He has made it. Okay, so उस समय रिटर्न 7.9% के थे, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया. अब जस्ट नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है कि रिटर्न्स -32% चले जाते हैं. सो बेसिकली अभी उसकी वो वैल्यू है 2,40,000. फिर उसके बाद थर्ड वो सोचता है ओके लेट मी वेट, वो सोचता है चलो थर्ड ईयर में वेट करते हैं, थर्ड ईयर में और रिटर्न्स नीचे चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज मार्केट, दिस इज समथिंग विच नोबडी कैन प्रिडिक्ट, राइट. दिस इज वॉलेटाइल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो थर्ड ईयर में वो देखता है कि स्टिल देयर इज अ डिप, देयर इज -9.42% रिटर्न्स. अब यहाँ पे ना उसमें पैनिक शुरू हो जाता है. एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स यूजुअली एक सबसे बड़ी गलती करते हैं 1-2 साल लॉसेस देख के कि ओके लेट मी जस्ट गिव इट अप, राइट.
सो मान लेते हैं कि इन्वेस्टर गिव अप भी कर देता है, वो यहाँ पे अपना खत्म कर देता है इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी। अब वो देखता है कि 4th ईयर में जब वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, नाउ ही सीज दैट सडनली मार्केट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग अप। So suddenly he sees that 15% का रिटर्न आया. He's like, okay. Then 5th year, another year he observes, he sees that okay, there's now a return of 25%, big gap. Then he sees in the 10th year, so now he actually understands his mistake कि मैंने जो फर्स्ट ईयर में अपना 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, अगर मैं आज 10 साल तक रुक जाता, माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू वुड बी 12 लाख. लिटरली सो मच. सो मैंने सिर्फ अपने वो 2 साल के जो मैंने लॉसेस बुक किए थे, उसके चक्कर में मेरे को लगा कि एवरीथिंग वुड बी रॉन्ग एंड आई टुक माई मनी ऑफ, बट नाउ माई मनी वुड हैव बीन सो मच मोर. And still there's much more. He sees that if he would have continued his journey, so 20th year में, या हम कह सकते हैं 20+ years में, वो 18.27 प्लस के रिटर्न्स अगैन बुक करते, एंड अब उनकी जो वेल्थ थी, जो कि 1,20,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो अब 27,10,000 हो गया. Now this is something which is insane, and this is something which tells you the power of patience. So if you're patient enough, then my dear friend, this thing is the best for you. अगर आप पेशेंटली थोड़े टाइम तक रुक सकते हैं और मार्केट को वॉच कर सकते हैं, मार्केट को देख के पैनिक नहीं होना है, मार्केट को देख के ये नहीं करना है कि ओके इफ इट्स डिपिंग डाउन लेट मी जस्ट टेक आउट माई मनी. नो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट ऑब्जर्व इट. आप जब पैसा कहीं लगा रहे हैं तो आप पहले ही उसकी पास्ट हिस्ट्री देख के लगा रहे हैं, आप पहले ही बहुत R&D करके जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा लगा रहा है. तो जब वो पैसा लगा है, तो अगर एकदम से कुछ हुआ है तो कुछ टाइम के लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए, कुछ टाइम के लिए प्लीज़ थोड़ा सा उस पर नज़र रखिए कि ओके इफ इट्स हैपनिंग दिस वे, देन लेट मी जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर फ्यू मोर ईयर्स, राइट. सो दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस. ओके, now let me talk about asset allocation. Now asset allocation is again something we just discussed in the early part of the session. So basically इसमें मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपकी रिस्क हाई हो सकती हैं या लो हो सकती हैं, और आपके रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है विद योर डिसीजन ऑफ कि आप कितना अमाउंट लगा रहे हैं और आपका गोल क्या है. ठीक है, सो वील टॉक अबाउट इट. अगर आपका लो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपका गोल लॉन्ग टर्म है, तो द रिस्क आर हायर, एंड ऑल्सो जहाँ रिस्क हायर होती हैं वहाँ पे रिटर्न्स भी हायर ही होते हैं, राइट. दिस इज समथिंग वी स्टडीड इन आवर 11th क्लास बिजनेस स्टडीज, दैट हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न्स, राइट. ओके, नाउ सेकंड वन इज मीडियम इन्वेस्टमेंट. अगर आप मीडियम एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आपका जो गोल है वो भी एक मीडियम टर्म गोल ही है, then the moderate risk is there and also moderate returns is there. But if you're doing high investment, अगर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लगा रहे हैं, राइट, आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन आपका गोल, जो आपका टाइम पीरियड है, जो कि सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रोल प्ले करता है इस पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अगर वो कम है तो आपके रिटर्न्स भी कम होंगे एंड डेफिनेटली आपकी रिस्क भी कम होगी, राइट. ओके, चलिए अब एक और बात कर लेते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में कही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके गोल्स के हिसाब से हम आपको स्कीम सजेस्ट करेंगे, राइट, या प्रोडक्ट्स अपने सजेस्ट करेंगे. ओके, सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए है, लेस देन 1 ईयर के लिए है, सो लिक्विड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वुड बी द बेस्ट फॉर यू. इसमें आपका गोल कुछ भी हो सकता है, राइट. गोल आपका कंटिजेंसी फंडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. Now second one is short term goals. Short term goals are basically from 1 to 3 years. As I've already told, इसमें आप debt mutual funds में जा सकते हैं. Goals again depending on you, it can be vacations, it can be car purchase or anything, right? Okay, third one is medium term goals. Medium term goals basically 3 to 6 years के बीच के होते हैं, and इसमें हम again आपको hybrid mutual funds ही suggest करेंगे. The next one is long term goals. Long term goals are usually from 6 to 10 years. This may you can definitely go for equity mutual funds. And the last one is very long term. अगर आप आए हैं कि आपको 10+ years का आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, then definitely diversified portfolios में आप जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप, सेक्टोरल MFs, there are lot many things जिसमें आप अपना कदम रख सकते हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, राइट. ओके, सो ये बेसिकली थे कि आप
दिस इज बेसिकली अ मैप फॉर योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, राइट, कि आप आपके दिमाग में अभी जो है उस आपके गोल्स के हिसाब के प्लस आपको कितना टाइम होराइजन के लिए करना है, तो आपको एक जेनरिक आइडिया इससे हो जाना चाहिए. Okay, now the next thing and basically the last thing which we'll talk about is taxation. हमने सेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि टैक्सेस जो होते हैं, एक टैक्स बेनिफिट जो होता है, ये हम सबको चाहिए कि हमारा पैसा टैक्स में कैसे बचे. ठीक है, मैं आपको टैक्स थोड़ा सा समझा देती हूँ अभी करंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग. तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर इफ देयर इज STCG, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर आपने अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया फॉर अ टेन्योर ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, अगर आप लेस देन 12 मंथ्स में उसको इनकैश कर लेते हैं, मान लेते हैं वो अमाउंट हो जाता है 2 लाख रुपए. ठीक है, 2 लाख रुपए अगर वो अमाउंट हो जाता है, तो बेसिकली 1 लाख आपका जो है वो गेन आया. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज द STCG, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 20% लगता है. तो उस 1 लाख पे आपका 20% विच इज द 20,000 वुड बी योर टैक्स, राइट. ओके, अब इक्विटी MF में ही हम बात करते हैं LTCG की. LTCG में एक चीज़ है कि 1.25 लाख तक की आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट. उसके बाद आपके पास 12.5% का टैक्स लगेगा. ठीक है, मान लेते हैं कि LTCG अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये बेसिकली अगर आप 12 महीने के बाद निकाल रहे हैं अपना पैसा तभी एप्लीकेबल होता है, उससे पहले STCG एप्लीकेबल होता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 1.25 लाख ही है और आप 12 महीने के बाद निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. मान लेते हैं आपकी इनकम 2 लाख रुपए है और तब आप निकाल रहे हैं, तो 2 लाख बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गेन, राइट. सो अब इस 2 लाख में 1.25 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट द रिमेनिंग 75,000 पे आपका 12.5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, एंड दैट द सम अमाउंट वुड बी योर टैक्सेबल इनकम, राइट. ओके, डेट MF में कोई बात ही नहीं है. डेट MF में जैसे हमारे इनकम टैक्स के स्लैब्स रेट होते हैं, उसी हिसाब से हमारा डेट म्यूचुअल फंड्स भी वर्क करता है. ओके, so so now it has ended, and this was all about our session for IAP. I hope मैंने आपके सारे questions को आंसर करा होगा, आपके सारे doubts जो आते हैं उनको आंसर करा होगा, and I am really open up to questions if any. And at last I have one thing, and that is save wisely, invest rightly, and plan smartly. If you do a blend of all these 3 things, my dear friends, the money which you'll make would be immense. And I'd just like to say that all the very, very best for your coming up financial journey, and see you very soon.